یہ واقعہ اگست 1947 کا ہے، جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ برصغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن فی الحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 اگست کو مل گئی، کیونکہ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں آدھی رات کو انڈیا کی آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہ اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک و ہند کی گلی محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر جنی جاری تھی، اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کے ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھیں۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کے لیے کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے اہل و عیال اور معمولی ساز و سامان لیے رواں دواں تھے، لیکن یہ سفر ہجرت لاکھوں صدمے دے گیا۔ ہر قدم پر قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور کٹھن راستے۔ نہ جانے کتنے جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کھو دیے، کتنے ہی ماں باپ کے لختے جگر ان کی سامنے بچھڑ گئے، اور کتنی ہی بہنوں کو عصمت زنی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی داستان زندہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور پھر اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، جستجو تھی تو خود کو ہندوؤں سے بچانے کی، اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کے لیے۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے: لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست کی رات ٹھیک 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنی ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ بعد 12 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نامہ نگار خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے گرد جمع ہو گئے، پرجوش، پرعزم اور شادماں۔ جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پس منظر میں جا کر غائب ہو گئی اور ایک آواز ابھری: اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی۔ سننے والوں کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی: دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز، اور پھر اردو میں آواز آئی: ریڈیو پاکستان ہے۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشر عالمیہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سبھی ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو ریڈیو پاکستان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد پیش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ذکر ہر کسی کو سالوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ لمحہ تھا جب سب نے پہلی بار اپنے کانوں سے پاکستان کے ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا۔ اس کے بعد انتہائی خوشگوار آواز میں قرآن پاک کی سورۃ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم کو سیدھے راستے چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے گا۔ دوسری طرف ہندوستان میں راجن پور کے علاقے میں 2 بوڑھے میاں بیوی آدھی رات کو گھر سے نکلے۔ تماش بین اپنا تماشا کر کے جا چکے تھے، مگر بربادی اور تباہی کے آثار چاروں طرف پڑے ہوئے تھے۔ وہ بوڑھے میاں بیوی بے اولاد تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اپنی نیکی میں گزار دی، دوسروں کی خدمت کرتے گزار دی۔ اس وقت بھی جب سب لوگ تماشا وغیرہ کر کے چلے گئے تو گھر سے نکلے۔ ہاتھ میں چھوٹی سی لالٹین پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا تاکہ کوئی زخمی نظر آئے تو اس کی مدد کریں، ایک ہاتھ میں پانی تھا کہ کوئی پیاسا مرتا ہوا نظر آئے تو اس کو پانی پلا دیں۔ الٹ پلٹ کر دیکھتے دلاتے لاشوں کو آگے پیچھے کرتے آگے آگے جا رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اس ٹائم گلی میں کوئی نہیں آئے گا، اس لیے وہ دونوں میاں بیوی راستے سے لاشوں کو سائڈ پر کرتے ہٹاتے جا رہے تھے۔ لوگ مار پیٹ کر کے ان کا سارا ساز و سامان جو کچھ تھا وہ وہاں سے اثاثہ وغیرہ لے کے بھاگ چکے تھے۔ ادھر بے یار اور مددگار خالی لاشیں ہی پڑی ہوئی تھیں۔ وہ آگے چلتے گئے تاکہ کسی کو ہی زندہ پیاسا ان کو مل جائے، مگر وہ اتنی دیر سے نکلے تھے کہ شاید وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سارے ہی مر چکے تھے۔ اتنے میں ان کے کانوں میں چپ چپ کی آواز سنائی دی۔
दोनों बूढ़े मियाँ बीवी के कान खड़े हो गए। वो लाशों से अपने पाँव बचाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगे तो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक औरत बरहना पड़ी हुई थी और उसके सीने से लगा कुछ घंटों का बच्चा चप चप उसके पस्तान से दूध पी रहा था। उसकी माँ का नाड़ू अभी तक उसके साथ लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लम्हा पहले ही उसकी जचगी हुई। शायद वो अपने काफिले के साथ जा नहीं सकी थी। इस हालत में दर्द ज़ैर ने उसे आगे बढ़ने ना दिया तो वहीं गिर पड़ी। और उस वक़्त माँ मरते मरते और तो कुछ ना कर सकी। अपने बच्चे को ही अपने सीने से लगा दिया ताकि मैं मर भी जाऊँ तो कुछ घंटे मेरा बच्चा ज़िंदा रहे। इन दोनों मियाँ बीवी की ये देखकर जान निकल गई। बूढ़ी बीवी ने आगे बढ़ के जल्दी से अपना दुपट्टा उतार के उसके ऊपर दे दिया और इस बच्चे को इसके सीने से लग किया तो वो बच्ची थी। नीम रोशनी में इस सितम पर उसका दिल बंजर था। वो नन्हा सा वजूद अपनी आंखों को बड़ी जिद्दोजहद से पूरा खोलने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं वो क्या देखना चाहता था। वो बेदिमागी की आलम में उसका चेहरा देखती रही। उसके नकूश बहुत नासा थे, बहुत मानूस से थे। वह मासूम चेहरा था। बहुत देर बाद उसे महसूस हुआ था और पता नहीं कुछ बेख्तियार सी होकर वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगी थी। होंठ, नाक, आंखें, माथा, गाल, वो नरमी से हर चीज़ को छूती गई। फिर इन लोगों ने उसको इसकी माँ से अलहदा किया। उसको घर उठा के ले आए। घर आते ही उसको साफ करके उसको कपड़े में लपेटा ताकि इस बच्चे को हरारत मिले। बूढ़ी बीवी ने बच्चा अपने शौहर को दिया। खुद पानी गर्म करने लग गई और नीम गर्म पानी से बच्चे को नहला धुला के साफ करके कपड़े में लपेट के रख दिया और खुद दूध गर्म करके अपनी उंगली डुबो के उस बच्ची के मुंह पर लगा दी। बच्ची चप चप जैसे अपनी माँ का दूध पी रही थी वैसे इसकी उंगली से दूध पीना शुरू हो गई। ऐसे ही उन्होंने इस लड़की को अपने पास रख लिया और उसको रात भर जाग कर संभालते रहते। बीमार होती तो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात उसके लिए जागते। वो रोने पर आती तो चुप होने का नाम न लेती और बारी बारी दोनों रात गए तक उसे लिए छत पर टहलते। उन्होंने उसका नाम माही रखा था। वो उन दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी थी। माही लेटी होती तो वो इतनी देर उसके कमरे के चक्कर लगाते रहते। माही उठी नहीं, माही उठी नहीं। उन दोनों की गुजर बसर अपना नीचे वाला पोर्शन किराए पर देकर हो रहा था। वो उनके लिए बहुत था पर माही आ जाने की वजह से खर्चा बढ़ गया था और उसकी दवाएं, दूध, कपड़े, उनका बस ना चलता अपनी माही के लिए दुनिया के खजाने लुटा दें। माही के दांत का थोड़ा सा गोश्त का लोथड़ा नजर आया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो रोज देख देख के खुश होते, दिन गिनते कब उसका दांत बाहर आए। एक दिन गिलास से टक टक की आवाज़ आई तो दोनों मियाँ बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बार बार बच्चों की तरह माही के होंठों से पानी का गिलास लगा के टक टक की आवाज़ सुनते। एक दिन अम्मा नीचे आने लगी तो वो माही को भी नीचे उठा लाई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में वो जाकर रोना शुरू कर दे। अम्मा ने किचन के सामने वाली राहदारी में बिठा दिया। फूलों की एक शाख उसने खेलने के लिए उसे दी। काफ़ी देर तक वो उसी शाख के साथ खेलती रही और अम्मा किचन में किराएदार के साथ काम में मसरूफ़ थीं। फिर पता नहीं कब माही वहाँ से रेंगती हुई बरामदे में चली गई थी और वहीं उसने एक तार से खेलना शुरू कर दिया था। किराएदार का बेटा रिजू बाहर प्लास्टिक का घोड़ा चला रहा था। जब वो घोड़ा छोड़कर अंदर आया तो उसने माही को तार खींचते हुए देखा था। कुछ गुस्से में वो उसके पास आया था और उससे तार खींचने लगा। जब रिजू ने उसके हाथ से तार नहीं छुड़ा सका तो झंझलाहट में उसने माही को जोर से धक्का दिया था और वो मुंह के बल दीवार से टकराई थी। एक जोर की चीख उसके हलक से निकली थी और अम्मा जिस तक उसके रोने की आवाज़ नहीं आई थी उस आवाज़ पर चौंक पड़ी थी और जब उसने किचन से बाहर आकर देखा तो वो दक से रह गई थी। वो अपनी जगह पर नहीं थी और इसके रोने पर वो तकरीबन भागती हुई बरामदे में गई थी। 8 साला रिजू अब फातिहाना नज़रों से तार हाथ में लिए हुए उसे देख रहा था और वो ज़मीन पर औंधी पड़ी हुई थी। वो भाग कर उसके पास आई थी और उसे सीधा करते भी उसका सांस रुक गया था। उसका मुंह खून से तर था। उसने बिना सोचे समझे रिजू के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और वो रोता हुआ वहां से भाग गया था। वो उसे गोद में उठा के गुस्लखाने में ले आई थी और वहां उसने उसके होंठों पर लगा हुआ खून साफ करना शुरू किया था। मगर सिर्फ इसके होंठ ही जख्मी नहीं थे, उसके मुंह के अंदर से खून बह रहा था। उसने माही का मुंह खोलकर अंदर देखने की कोशिश की थी और एकदम उसने खुद भी फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। माही के ऊपर वाले जबड़े में सिर्फ एक दांत निकला हुआ था और अब वो भी मामूली से गोश्त के साथ लटक रहा था और जिस जगह पहले दांत था वहां से बेतहाशा खून निकल रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो इस लटकते हुए दांत को खींच कर अलग कर देती या खून रोकने की कोशिश करती।
वो रोती हुई माही को लेकर गुसलखाने से बाहर निकल आई थी। वो माही का इकलौता दांत था और जब ये दांत निकलना शुरू हुआ था तो वो बेतहाशा खुश हुई थी। वो रोज़ कितनी बार इस दोदिया डब्बे को देखती और इसके लिए वो चांद ही की तरह था। और अब जब दांत मुकम्मल हुआ था तो वो माहम को दूध में भिगो भिगो कर बिस्किट खिलाती और बिस्किट के ऊपर से दांत के हल्का सा निशान देखकर उसे यूं लगता जैसे उसकी दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसके दांत को देखना, उसे छूना, उसे हंसना इन दिनों उसकी वाहिद तफरीह थी और अब वो भी ख़त्म हो गई थी। वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में उसे लेकर बैठ गई थी। उसे सीने से लिपटाए चुप करवाने के बजाय वो खुद भी बिलक बिलक कर रो रही थी। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज़ पर सर उठा कर देखा तो वो उसका शौहर था। बच्ची को मरहम पट्टी के लिए ले गया। इस वाक़ये के बाद वो बहुत मुहतात हो गई थी। वो अब उसे नीचे नहीं लेकर जाती थी और नीचे का हिस्सा भी खाली करवा लिया। उसकी दुनिया बस माही थी और इसके बूढ़े शौहर की भी। वो माही के लिए दिन रात लकड़ी के खिलौने बनाता रहता और अम्मा चूरी बना बना के उसको खिलाती। माही ने चलना शुरू किया तो उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बूढ़ा बाप बाजार गया, वहाँ से रंग बिरंगी कढ़ाई वाले बनारसी खुद से लेके आ गया कि उसकी माही चलने लगी, खुद से पहनाएगा। उसके पाँव के लिए पायल लेके आ गया। माँ रात को सोती तो उसको अपने साथ लिटा के कहानियाँ सुनाती, उसका ख्याल रखती। अब माही बड़ी हो रही थी, वो चल रही थी। उसकी हंसी की खिलखिलाहटें, कुलकारियाँ उनके सूने आंगन में गूंजती थी। वो दोनों उसको देखकर जीते थे, मगर इस वाक़ये के बाद अम्मा डर गई थी। उसको एक ही वहम था कि हिंदुस्तान में उसकी माही अकेली रह जाएगी। उनके बाद अब उनका एक ही मिशन था, उसके नन्हे से दिमाग में डालती कि उसने पाकिस्तान जाना। इधर सब उसके बहन भाई उसके अपने, वो इसका ख्याल रखेंगे। माँ जब भी इबादत करने लगती, माही माँ के पास आ जाती और वो जैसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती भगवान से, माही भी करने लग जाती। माँ जल्दी से अपनी इबादत छोड़ के माही के हाथ पकड़ लेती। नहीं मेरी माही, देख मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है, ये मेरा भगवान है, मैं उसे पूजती हूँ। मगर तेरे माँ बाप कहते थे कि अल्लाह एक है और वो हर जगह मौजूद होता है। वो किसी बुत वगैरह को नहीं मानते थे। तू तो ऐसे ही दुआ किया कर, तू बुत के आगे ना बैठा कर। माही मासूमियत से कहती, अम्मा मेरी अम्मा तो तू है। वो प्यार से उसे सीने से लगा लेती। हूँ हाँ मैं तेरी माँ हूँ, पर एक और जगह भी है जहाँ तेरे अपने हैं, तेरे घर वाले हैं। वहाँ पे सब मुसलमान हैं और मेरी माही को बड़े होके उधर जाना है। और माही डर जाती, भाग के जाके बाबूजी के सीने से लग जाती। नहीं बाबूजी, अम्मा से बोले मुझे कहीं नहीं भेजे। तो बाबूजी अम्मा से लड़ते कि मेरी बेटी को तंग नहीं किया कर। अम्मा परेशान हो जाती। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, अम्मा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी सहन में बैठे हुए थे। माही अपने कमरे में सो रही थी। तब बायूजी ने अम्मा से बोला कि क्यों तू माही को तंग करती है। अम्मा परेशान होके बोली कि हम कमज़ोर हैं। भगवान ने हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी उस वक़्त डाली जब हम ये बोझ उठा ही नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि ये जो सांसें हमारी चल रही हैं, ये भी माही की वजह से चल रही हैं कि हम उसे थोड़ा समझदार बना दें, उसे थोड़ा पाल लें। नहीं तो क्या पता अब तक हम मर चुके होते। यहाँ पे किसी अच्छे मुसलमान को हम नहीं जानते और ये मुसलमान है और इसे हमें मुसलमानों को ही देना है। हिंदुओं में हम उसे नहीं ब्याह सकते, नहीं तो सारी ज़िंदगी इसको ये ताना सुनना पड़ेगा कि ये मुसल्ला है, मेरी बच्ची दिल मार के जिएगी। और अगर कल को मैं मर गई या तू मर गया तो फिर हमारी माही का कौन होगा। उधर उसके अपने हैं, सारे वो उसका ख्याल रखेंगे। इसलिए माँ हूँ ना, डरती हूँ। मेरे दिल में हज़ार वसवसे आते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद मेरी बच्ची के साथ कोई बुरा करे, तो मैं उसको उसके अपनों के पास भेज देती हूँ। अभी से मैं उसके ज़हन में डाल रही हूँ ताकि एकदम उसे पता चले तो उससे गम ना हो। बाबूजी भी सोच में पड़ गए थे और चुप कर गए। उनकी बीवी सही कह रही थी। वो वाकया कमज़ोर थे। अगर इतने साल वो जिए तो माही की वजह। माही वो फूल थी जिसकी हंसी उनके सोने आंगन को महकाती थी। उसकी कुलकारियाँ, उसकी शरारतें इन दोनों को जिंदा रखे हुए थीं और जवान रखे हुए थीं। उन्होंने माही को कई कमी नहीं आने दी। उसको ऐसा ही माहौल दिया जैसा कि एक मुसलमान का होता है। 14 अगस्त आती तो वो अपने घर में खुद ही लई से झंडियाँ बना के कमरे के में लगा के और 7 गुब्बारे लगा के माही को देते, दिए जलाते, चिरागां करते और उसके साथ 14 अगस्त मनाते। 15 अगस्त आती तो झंडे लगते, छतों के ऊपर रोशनाइयाँ होती, चिरागां होती और शोर शराबा होता। तो माही को कहते कि माही पुत्र, जैसे हम यहाँ पे 15 अगस्त मना रहे हैं, जब तू बड़ी हो जाएगी हम तुझे पाकिस्तान भेजेंगे, तू उधर तू भी आज़ादी से ऐसे ही मनाना।
माही उनके साथ 14 अगस्त भी मनाती और उनके साथ 15 अगस्त भी। माही की ईद होती तो वो लोग ईद मनाते, उनकी दिवाली होली होती तो माही उनके साथ दिवाली होली मनाती। ऐसे ही खुशी खुशी दिन गुजरते जा रहे थे। माही अब बड़ी हो गई थी। जब माही 15 साल की हुई तो वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी देखता देखता रह जाता। अम्मा ने उसका ख्याल भी इतना रखा था कि उसके चेहरे पर दूध गुलाब की पत्तियां भिगो भिगो के लगाती, इसबगोल भुगो के लगाती रहती, मेरी माही का धूप में रंग ना खराब हो। और कुछ कुदरती हुस्न भी था। प्याज ला के सरसों के तेल में जला के गंटू उसके सर पे लगा देती, गंटू सर की मालिश करती। उसके स्याह चमकदार चमकीले रेशमी बाल और खूबसूरत माही, वो देख देख के दोनों मियाँ बीवी जीते और डरते। अम्मा उसे छुपा छुपा रखती, घर से बाहर ना जाने देती। एक अजीब से खौफ ने उनके दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसे ही दिन गुजरता और माही 18 साल की हो गई। अब वो बूढ़े मियाँ बीवी बहुत परेशान रहने लगे थे। बूढ़े मियाँ का तो यही ख्याल था कि यहाँ कोई मुसलमान फैमिली देख के उसकी शादी करते हैं, क्योंकि उसे माही से बहुत प्यार था। वो उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। माही में उसकी जान थी। प्यार तो अम्मा को भी बहुत था, मगर वो कहती थी कि मैं मर गई तो पता नहीं फिर हिंदुस्तान में उसके साथ वो सलूक हो या ना हो। इसलिए उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी पाकिस्तान चली जाए। बूढ़े मियाँ ने अपनी बीवी से छुप छुप के किसी मुसलमान का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, मगर उसे मौका ही ना मिला। एक दिन बूढ़े मियाँ को हार्ट अटैक हुआ और गिर पड़ा, तो फिर उठ ना सका। अब पीछे अम्मा अकेली रह गई थी। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि बाहर से कोई सौदा सलफ या कोई चीज़ वगैरह ला सके। अब मजबूरन माँ ने माही को बाहर भेजा कि जाओ माही, बाहर से सब्जी ले आओ, मगर सीधे जाना सीधे आना। बाहर सब्जी लेने गई तो बाहर एक पत्ता लेने वाले की नज़र इस पे पड़ गई। उसने गली में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। वो बस उसके पीछे हो गया। वो बाहर जाती तो उसको डराता, माही के पीछे आ जाता। अब तो उसकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई थी कि वो अंदर तक आ जाता। बूढ़ी माँ का दिल दहल जाता। वो कैसे अपनी माही को बचाए, और उसको ये पता नहीं था कि कब उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। फिर उसने अपनी बेटी को पास बिठाया, उसे प्यार से मनाया और बोली, देख माही, तू जानती है ना मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। फिर भी मैंने सारी ज़िंदगी तुझे ये बताया कि तुझे तेरे वतन जाना है, जहाँ कोई तुझ पर गंदी नज़र नहीं डालेगा। 19 साल मैंने तुझे इस ज़मीन में बचा के रखा। अब वक्त आ गया है तेरा अपनी सरज़मीन पर जाने का। कल 14 अगस्त है। 19 साल पहले 14 अगस्त को तू हमें मिली। मैं चाहती हूँ कि कल का सूरज तू अपने वतन देखे। जा मेरी बेटी, तू अपने अपनों में, वहाँ तेरे भाई होंगे जो हमेशा तेरी असमत की हिफाजत करेंगे। तेरा बाप नहीं रहा। कमज़ोर माँ बेटियों से नहीं लड़ सकती। रोना नहीं, उदास नहीं होना। माँ की दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। और अगली सुबह माही हिंदुस्तान छोड़ के अपने पाक वतन पाकिस्तान में थी। पूरे जोश व खरोश से 14 अगस्त मनाई जा रही थी। स्कूल के बच्चे सबज सफ़ेद चांद तारे वाले झंडे लिए रैली निकाल रहे थे। पूरी फिजा नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंज रही थी। ऊंची ऊंची डेक में मिल्ली नगमे लगे हुए थे। गली गली में मिठाइयाँ, बूंदी सवैयाँ, तरह तरह के पकवान बट रहे थे। प्यारे प्यारे बच्चे सबज सफ़ेद चांद वाले कपड़े, स्टिकर, चूड़ियाँ, बैंड, चंडियाँ, गर्ज कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छोड़ी हो। हत्ता के मुंह तक पर स्टिकर लगा कर रखे हुए थे। दिली खुशी से चमकते चेहरे, आज़ादी से घूमते फिरते 14 अगस्त मनाते बच्चे लोग माही को बहुत अच्छे लग रहे थे। वो इश्तियाक से हर चीज़ को देख रही थी। तभी उसे हजूम नज़र आया। वो टाउन कमेटी थी, वहाँ तकरीर हो रही थी। माही उस जानब बढ़ी। हज़ारों घर लुटे, हज़ारों बहनों की असमतें लुटी, हज़ारों जिंदा जलाए गए, तब वजूद में आया ये पाकिस्तान। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हम लोग हमेशा ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हकीकत तो ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान ने हमको आज़ादी दी, हमें आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका दिया। आज हम जो कुछ हैं वो अपने मुल्क की वजह से हैं। आज हम लोग आज़ाद हैं। इन लोगों से पूछिए जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज़ादी की कीमत उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस वतन की आज़ादी के लिए अपने सर कटवा दिए, अपनी औलादों को कुर्बान किया, अपने अजीज़ों कारब को अपनी आँखों के सामने खोया, अपना सब कुछ लुटा दिया, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो सकें, हम लोग आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। अजीज़ दोस्तों, इस वतन की कदर कीजिए। वो गौर से सुन रही थी। जब कुछ मनचले उसके पास आए, माही के दिमाग में माँ की आवाज़ आई, वहाँ सब तेरे भाई हैं। उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, आंखों से लगा के चूम ली।
मंचलू को पता चल गया कोई नई लड़की है। उसे बोले पाकिस्तान दिखाएं। वो चल पड़ी। कुछ घंटों बाद एक वीरान सड़क पर खूबसूरत माही की बरहना लाश बेआसरा बेआबरू पड़ी थी, जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाकर मौत की घाट उतार दिया गया था। 19 साल एक हिंद सरजमीन पर सांस लेने वाली इस पाक सरजमीन की बेटी 19 घंटे भी पाकिस्तान पर आज़ादी से सांस ना ले सकी। पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने चंद घंटों में अपनी बहादुरी दिखा दी थी। दूर कहीं डेक से आवाज़ आ रही थी, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।